Good afternoon, class. So today's topic of discussion is functional equations. Functional equations से क्या मतलब है? See, just like you have quadratic equation, okay? In X, what is this? This is trigonometric equation. What is this? This is logarithmic equation, and so on. Okay. So similarly, now you will see some equations in terms of functions. For example, this. What is this? This is a functional equation in terms of function. And on the basis of given function and given information, you will be required to solve some questions. Okay, you will be required to solve some questions. Now, in solving these questions, what you have to remember? You have to remember a basic fact that f is function of x. For example, if I say that suppose this is fx, right? What is the meaning of this? The meaning is that whatever x I put here, the same value will be coming here, right? This is called function of x. So if I write z here, then what will be the output? 2z square plus 3. If I let's say in place of x I write 1 by x, okay? So the same change will occur in the right hand side, and it will become this. Similarly, if I replace x by minus x, I get this change, and likewise, okay, because f is a function of x. So this concept we'll be using to solve the questions based on functional equations. There is no theory as such. This is the basic idea that f is a function of x. So whatever changes you will make here, okay, the same change will occur in the right hand side according to the function, whatever function is given. Now, what type of questions are asked in this article? Okay, let us start with this question. For x belongs to R, the function fx satisfies two fx plus f of 1 minus x equals x square. There is some function which satisfies this equation for all x belongs to R. Okay, that means you can put any value of x. Then find value of f4. On the basis of that, you have to find the value of f4. Now the value of f4 means a numerical value. Okay, a numerical value will be there. And I have told you that how you will proceed in this question. Whatever changes you will make in x, wherever x is there, the same change will occur. So based on this given information and the equation, we have to find the value of f4. So can any one of you suggest any value of x that we can put here? To start this question, can you suggest any value of x in this particular question? You can just try, because it is not necessary that you may get the answer at the first step only. But looking at the question, what do you think? What is the value of x that we can put? So 4. Yes, that is the obvious substitution, because you are supposed to find f4 and it is given fx.
So putting x equal to 4, we get 2f4 plus f of, when you put 4 here, it is 1 minus 4 minus 3, and in the right hand side it will be 16. This is your first equation. Actually you have to find f4. Okay, you have to find f4, but now that value is coming in terms of f of minus 3 also. Okay, so if we can get f of minus 3, we will get this answer, that the value of f4. So now can you tell me what is the other value of x that we need to put in this equation? One more value and question will be over. So minus 3. Very good, absolutely correct. Putting x equal to minus 3, we get, where we are putting this value, in the given functional equation. And why we can put these values? Because x belongs to R. So this will be 2f of minus 3. When you put minus 3 here in the second term, this term, it will be f1 minus of minus 3. What it will be? It will become f4, and in the right hand side minus 3 square is 9. And now it is a simple question of linear equation in two variables. You have these two equations, 1 and 2, solve them and get f4. So what you can do, you can multiply the first equation by 2 and then subtract second equation from that, or you can put the value of f of minus 3. Suppose I multiplied by 2, so 4f4 plus 2 of f minus 3 equals 32, and this you copy as it is, write f4 first, rearranging, right, f of minus 3 equals 9, and then you simply subtract and that will be the answer. So what will happen? This term will be cancelled, correct? What you will get? 4f4 minus f4 means 4 times of something minus 1 time of that thing, 3f4. Right side 32 minus 9, 23. And the final answer is f4 equals 23 by 3. This is the final answer. Tell me, is it clear, or anyone having any doubt? Anyone having any doubt in this question? Okay, then let's take the next example. Let fx equals ax7 plus bx cube plus cx minus 5, where a, b, c are constants. If f of minus 7 is equal to 7, then f7 equals, it is a single choice, correct? I am giving you the options. Try this question. Try this question and tell me if you can get any answer. Just let me know.
Any answer for this question? See, first of all, try to understand what is given and what is asked. F of -7 is given and f of 7 is asked. करेक्ट? तो मतलब फंक्शन f में एक बार तो -7 रखना है, एक बार 7 रखना है, या ये बोल सकते हैं कि f(x) और f of -x के बारे में बोल रहे हैं। तो एक बात सुनिए, इससे आपके लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा। f(x) कितना है आपके पास? दिस इज f(x). तो फिर f of -x कितना हो जाएगा? अब कोई बोलेगा ये कैसा है माइंड में कि f of -x निकालना है, वही तो बता रहा हूँ। f of 7 निकालना है, f of -7 दे रखा है, यानी f of x के बारे में पता करना है अगर f of -x दे रखा हो, ऐसी बात। सो व्हेन यू विल रिप्लेस x by -x, तो हर जगह होगा ऐसा। यहाँ तो x आ नहीं रहा, तो यही ऐसे लिख, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लो, उसके बाद सॉल्व कर लो। वो चेंजेस क्या हैं? नेगेटिव अगर साइन ओवर ऑड पावर हो तो माइनस ऐसे लिख सकते हो, is minus bx cube is minus cx minus 10. This is your second equation. Now simply add first and second. फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो तो व्हाट यू विल गेट ऑन LHS। और पता है RHS में सिर्फ क्या बचेगा? -10। क्यों? AX7 -AX7 से कैंसिल हो जाएगा, bx क्यूब माइनस bx क्यूब, cx माइनस cx, तो बचेगा क्या? ये क्वेश्चन इज ओवर। अब इसमें क्या करो, x को 7 रख दो। जब x को 7 रख दोगे तो बन जाएगा f7 प्लस f of -7, और वैल्यू तो फिक्स ही है -10। अब इसमें से एक की वैल्यू आपको पता है, दूसरे की आ जाएगी। f of 7 आपको निकालना है, f of -7 की वैल्यू फ्रॉम द गिवन डेटा दिस इज 7, सो फाइनली f of 7 कम्स आउट टू बी -70। ये ऑप्शन। तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके आपको देखना होगा किस तरह के चेंजेस करने हैं, क्या करना है। बाकी इसमें और ऐसा कुछ अलग सा नहीं होता है, जो भी है क्वेश्चन से ही आइडिया लगाना होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ x belongs R-0 such that 2f(x) minus 3f of 1 by x equals x square। ठीक है, x belongs R-0, that means you can put all x except 0, then find f(x). फंक्शन f(x) निकालना है इसमें। So actually this question is just like the first question, जिसमें f4 और f-3 में दो इक्वेशन बना ली थी हमने। इसी तरीके से एक इक्वेशन हमें दे रखी है f(x) में और f of 1 by x में। तो अगर हम इसमें भी एक इक्वेशन और बना लें तो उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो f(x) आ जाएगा। ये करना है। तो इसमें ये तो गिवन है आपका, है ना। क्या कोई मुझे बता सकता है कि x को किस से रिप्लेस किया जाए? एक स्टेप और आंसर आ जाएगा। 1 by x। वेरी गुड, बिल्कुल सही सोच रहे हो।
क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल में वही उसी तरह का हमने यूज़ किया था। रिप्लेस एक्स बाई 1/x, देखो क्या होगा, ये तो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन में मतलब ये चेंज किस में करोगे, गिवन इक्वेशन में चेंज कर सकते हो और कहाँ चेंज कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा 2f(1/x), और जो 1/x है देखो ये है ना 3f(1/x), इसमें जब x को 1/x से बदलोगे तो क्या हो जाएगा, वो x ऊपर आ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा 3f(x) हो जाएगा, और राइट साइड में x² है तो 1/x² आ जाएगा। दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन। अब ये सवाल हो गया एकदम सिंपल, क्योंकि दो इक्वेशन है सॉल्व करना है। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, जो चाहिए उसको रखेंगे, जो नहीं चाहिए उसको हटा देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर लो 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट जो 10th में यूज़ करते थे। तो 2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4f(x - 6f(1/x) इज इक्वल टू 2x²। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आएगा 6f(1/x), 3 से मल्टीप्लाई करो 9f(x), 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब 3/x²। और अब दोनों इक्वेशंस को ना ऐड कर दो। ऐड क्यों कर दोगे, क्योंकि जो -6f(1/x) है वो +6f(1/x) से कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में बचेगा 4f(x - 9f(x) मतलब -5f(x), इधर बचेगा 2x² + 3/x²। ये आपका आंसर आ गया। आपको क्या चाहिए था, आपको निकालना था f(x), डिवाइड बोथ साइड बाय -5 एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये देखिए, अब जैसे इस क्वेश्चन में f(x) निकाला ना, तो इसमें पूछ सकता है कि f10 की वैल्यू निकालो, f3 की वैल्यू निकालो, तो रख देना x की जगह 3 यहाँ पे, फंक्शन ही आ गया पूरा, तो अब तो कुछ भी निकाल सकते हो आप उससे रिलेटेड। r-0 क्यों दिया हुआ था, r-0 इसलिए दिया था क्योंकि फंक्शन में एक जगह 1/x है, तो 1/x है तो x नीचे 0 नहीं हो सकता इस वजह से। ठीक, ऐसे किए जाते हैं क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको ट्राई करके देखो, ये होना चाहिए आप लोगों से। लेट f(x + y) इज इक्वल टू f(x + gy), दो फंक्शन है +8 फॉर ऑल इंटीजर्स। अब इसमें हम सिर्फ इंटीजर रख सकते हैं, ऐसा कहा गया, फॉर ऑल इंटीजर्स x एंड y। और क्या कहा जा रहा है कि लेट f(x = x फॉर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स x, फॉर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स x, एंड let g8 is 17, then f0 equals, वही सिंगल चॉइस करेक्ट है, एक आंसर सही है, बताना कौन सा। 9, 25, 17 -17 कि ये ट्राई करिए सर। So 70. Sorry, how much? 17.
Can you tell me the process? So put g of y is equal to 8 first. That means you want to put y as 8, correct? Then what else? So then you put x as -8. Very good. C will be the option. That is absolutely correct. What he has done, put x as -8 and y as 8. See what will happen. What will happen when we will put these values here in this thing? So the first term will become 0, f of 0. That is what you want, -8 plus 8. Then right hand side it is f of -8, correct? Next term is g of 8, and what is added? 8 is added, and you get the answer. Why? Because this is the question, and f of -8 will be -8y, because of this sentence that fx equals x for all negative integer x. That means if I will put some negative value here, negative integer in function, I will get the same value as the answer. What about g8? G8 is given in the question, and this is 8. Such a simple question. And you were supposed to put only integers. So just three informations. One is the relation in f and g. Then fx equals x for negative integer x, and g8 is 70. Only one substitution and the question is over. This you have to practice, and this you have to master over the period of time. Okay, now these are spontaneous things. Okay, you cannot learn. No one can tell you that you have to put -8 and 8. See, y is equal to 8 is obvious. Why y is equal to 8? Because see, only this term is of term which contains g, and the value of g8 is given, so it is obvious that I will put y as 8. But you have to think that you have to put x as -8. Why? So that you can create 0. Like that you have to think. Okay. Okay, another important thing, this is just a notation. Okay, I think I have told you, I don't know. Whenever you see something like this, it simply means fx plus gx. Okay, so obviously if it will be minus in between, then it is fx minus gx. So do not get confused, what is this? If it is f gx, then it means fx into gx. Okay, and one more notation is there, f upon g of x. This means fx upon gx. These four notations are important. Fine. So if you see anywhere these kind of notations which are written on the left hand side, this simply means addition, subtraction, multiplication and division of these two functions. Okay, so do not get confused. Okay, then apart from this, there are some standard results related to functional equations that you have to remember. Some standard results. I am writing here, if x and y are independent variables,
So generally we say that y is a function of x, but here what is the information? Both are free of each other, both are independent of each other. And apart from that, what else? Suppose this is given, that fxy equals fx plus fy. Then if this is the case, then the function which will satisfy this functional equation will be either k ln x or fx equals 0. I will explain first, let me write the results. If fxy is equal to fx into fy, then fx is x to the power n belongs to R. Then two results are related to this. Fx plus y, it is fx into fy. This time fx is a to the power kx. And finally, if fx plus y equals fx into f plus fy, then fx is kx, where k is constant. And then the fifth one, these 5 results are important. Fifth one is separate. Fifth one I will write separately. If fx is a polynomial such that fx into f of 1 by x equals fx plus f of 1 by x, then this implies fx is 1 plus minus x to the power n. अब ये जो लिख रहा है ना, ये समझना आप, ये एक्चुअल में फंक्शनल इक्वेशन का लास्ट पॉइंट है. एक तो उस तरह के सवाल आएंगे जो भी कराए, वैल्यू पुटिंग करके रिप्लेस कर करके देखने से आइडिया लगाओगे, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इन पर जो लिखा हुआ है डायरेक्टली इन पर बेस्ड आ जाते हैं. ठीक है. अब जैसे कि पहले हम इन 4 की बात करेंगे जो 4 लिखे हुए हैं ऊपर. कभी भी आपको ये दे रखा हो कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और मैं बात करता हूँ पहले फोर्थ की. ठीक है. अगर आपको दे रखा हो कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और आपको दे रखा हो कि कोई फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई को. ठीक है. तो फंक्शन क्या होगा? देखो, ये बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं कि ये इसका आंसर क्यों है, या ये फंक्शन ऐसा क्यों दिखता है. बिकॉज सी, इफ़ ये मैं हटा दूंगा अभी, अगर एफ एक्स मान लो कि एक्स है, तो एफ वाई कितना होगा? एफ वाई हो जाएगा के वाई. ठीक है. तो अगर तुम इसमें दोनों को ऐड कर दोगे, तो दोनों को ऐड करने पे मिलेगा तुम्हें के एक्स प्लस के वाई, और इन दोनों में से अगर तुम के कॉमन ले लोगे तो बन जाएगा एक्स प्लस वाई. और ये पता है क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा के टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुम देखो, मैंने क्या कहा था, जो चेंजेस तुम यहाँ करते हो वही चेंज यहाँ पर हो जाता है. तो अगर मैं x की जगह x प्लस वाई लिख देता हूँ, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? x प्लस वाई, और ये वाई तो बन गया. तो सॉरी, k टाइम्स नहीं आएगा, सिंपली एफ एक्स प्लस वाई आएगा. k तो आना ही चाहिए उसमें. ये पूरा का पूरा क्या बन गया कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर x प्लस वाई रख दिया गया ऐसा. तो अगर x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो उस फंक्शन को आप के एक्स लोगे. इसी तरीके से अगर थर्ड वाला है, लेकिन थर्ड वाले में अब क्या डिफरेंस है फोर्थ और थर्ड में? थर्ड में राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन. यस. So how did you get f of y is equal to ky? y, you put it here, no? You replace, if it is x, you put y, so this will also be y.
And so could you explain the last step, how you got fx plus y? See, what I'm saying, if any function is this, then it will be satisfying this equation. So if fx is kx, what about fy? Replace x by y. Okay. Now you add these two equations. So when you will add, you will get fx plus fy, right side you will get this. Okay. Then you take k common. So this becomes kx plus y. How you can get kx plus y from this topmost part? When you replace x by x, like that I'm saying. So take, take this third example also. So your voice is cracking. Sir, your voice is cracking. Yes, sir. Give it. Am I audible now? Please confirm. Can you hear me? Yes, sir. Okay. See, try to understand it still correct. I don't know. Some of you are saying, can you hear me? Yes, sir. Okay. Then see, listen this third point. If the function is of the form a to the power kx, okay. If the function is a to the power kx, then this satisfies third result. How? Fx equals a to the power kx. This implies f of y. How you find f of y from f of x? When you replace x by y. If you will multiply these two, if you multiply these two, fx into fy, it will be a to the power into a to the power ky, and this will ultimately change to a to the power kx plus ky, and this will change to a to the power kx plus y, and this is actually f of x plus y. Why? Because see, whatever changes you make here, same change will occur here. So if I write x plus y, I will get x plus y here, and that is what I am getting. So what is the meaning? See, if the function fx is of the form a to the power kx, it will satisfy this equation. This is the meaning. And vice versa. Vice versa means if there is any function which satisfy this kind of equation where x and y are independent of each other, then the function which will satisfy this equation is of the form a to the power kx. This is the meaning. This is applicable for all the four parts. We will see So could you questions explain on this also. It is just the root of the equation. What is the problem? You know what is the root of the equation? Root is something which satisfies equation. So you put this fx in these four equations, you will get LHS equals RHS. It is that simple. Like for example, second one is x to the power n. Second one is x to the power n. Okay. So if I put it on LHS and RHS, will both come to be same? Yes. Why? This is fx. So what is f of y? F of y means replace x by y. So that will be y to the power n. What will be f of xy? F of xy means you replace x by xy here. So this will be xy to the power n. What you can write in place of this?
x y to the power n means x to the power n into y to the power n using property of exponent. So what have you established? This is fy because this is fx from first and this is fy from second. So this means this equation is satisfied by this particular term. This is the meaning. It is like kind of a root. A root satisfies its equation. It's like that. Are you understanding now? Anyone having any other doubt in this concept? See, I'll be taking questions on this, okay? Don't worry. But you can try to understand in simple language that this is the root and it satisfies its equation. It's like that. So when you will put this in LHS and RHS, both will come out to be same. This is the meaning. Let us take questions on this. तभी समझ में आता है इसमें क्या है कि थ्योरी में बार बार आपको कंफ्यूजन रहेगा कि क्या. Just wait. देखो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन है जैसे JEE मेन में आया हुआ है 2003 में. यहाँ से आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा. सी दिस क्या दे रखा है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. मतलब एक्स भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वाई भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है. मतलब एक्स और वाई एक दूसरे से फ्री है. ऐसा नहीं है कि एक्स ही रख दिया तो वाई को यही होना पड़ेगा. नो, एक्स एंड वाई कैन बी एनी. ओके, फिर यानी एक तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए. फिर इन्होंने एक फंक्शनल इक्वेशन में एक रिलेशन दे दिया, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स एफ एक्स प्लस एफ वाई, और F1 की वैल्यू भी दे रखी है और कुछ पूछा है. अब सुनिए, जैसे ही आप इसमें ये पहला सेंटेंस पढ़ेंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, आपके पास सीधे फोर्थ रिजल्ट काम में आ जाएगा. तो मैं इसको पहले फर्स्ट मेथड से कर रहा हूँ. तो फर्स्ट मेथड से फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन आप सीधे लिख दोगे. ये फ़ायदा होता है इसका. कौन सा वाला यूज़ कर लोगे, जो फोर्थ वाला पॉइंट था. देखो ये जो एफ एक्स प्लस वाई इजिकल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये रहा इधर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. तो आप क्या लिख दोगे, आपको क्या मिल गया, आपको सीधे एफ एक्स मिल गया. कितना, आपको एफ एक्स मिल गया के एक्स. समझते जाना इसको, ठीक है. ये क्योंकि ये इसका रूट होता है या ये इसको सेटिस्फाई करता है, इसीलिए तभी तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये. अब इसके बाद आपको दे रखा है F1 इज़ 7. सो गिवन F1 इज़ 7. अगर मैं यहाँ से F1 निकालूँ तो अगर यहाँ से x को 1 रख दूँ, पुटिंग x इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हो गया कि k हो गया 7, और k अगर 7 हो गया तो फिर f(x) क्या बन जाएगा अपना, f(x) बन जाएगा 7x. मतलब k की वैल्यू निकाल ली. k कांस्टेंट होता है ना,
के की वैल्यू निकाल ली। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है सिग्मा आर 1 to n एफ ऑफ आर। अब अगर भाई एफ एक्स 7x है तो कोई बोले एफ आर क्या है, तो मैं समझा रहा हूँ ना इतनी देर से कि जो चेंजेस आप एक्स में करते हो वही राइट साइड में चेंज हो जाते हैं। यूजिंग दिस रिजल्ट ये आपको कितना मिल जाएगा, 7r मिल जाएगा। और इसके बाद ये 11th क्लास का क्वेश्चन हो जाता है, 7 तो कॉमन आ जाएगा और r का सिग्मा, सॉरी यहाँ तो n है वो गलती से 7 लिख दिया। ये कितना बन जाएगा, सिग्मा आर याद आ रहा होगा 1 to n कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये है स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज़। सीधे गिवन इन्फॉर्मेशन से आपको एफ एक्स इक्वल्स के एक्स मिल गया। उसके बाद f1 इज इक्वल टू 7 की हेल्प से आपने k की वैल्यू निकाल ली, तो आपके पास पूरा फंक्शन आ गया। जब आपके पास फंक्शन आ गया तो आपने उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब एफ एक्स हो या एफ आर, उसमें कैसे अल्फ़ाबेट का नाम चेंज होगा और फिर ये 11th क्लास का क्वेश्चन बन जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो 1% किसी को ये याद नहीं रहे कि ये के एक्स होता था, तो क्या वो सवाल छोड़ देगा? नहीं। तो फिर उसको करनी पड़ेगी थोड़ी मेहनत। वो कैसे करनी पड़ेगी, मेथड 2 में देखिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। पहले तो ये देख लो, उल्टा चलो ज़्यादा आसान रहेगा। मेथड 2 में आप ये देखेंगे कि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया ये, और इसको आपने एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब होगा आर को 1 रखा, फिर आर को 2 रखा, फिर आर को 3 रखा, सिग्मा सबको ऐड करता जाएगा और ऐसे लिखते लिखते एफ एन आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आप तुरंत से f1 की वैल्यू भी लिख दोगे, आपको दे रखी है, लेकिन उसके बाद आप समझ नहीं पाओगे कि अब क्या किया जाए, f2 कहाँ से लाएं, f3 कहाँ से लाएं। तो उसके लिए ना यही जो आपको रिलेशन दे रखा है ये काम में आएगा। यहाँ से आएंगी बाकी वैल्यूज़, कैसे देखें इधर, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ एक्स प्लस एफ वाई। वो तब होगा जब आप ये फर्स्ट मेथड यूज़ नहीं कर रहे। अब इसमें आप क्या करोगे, सवाल को देखते हुए और जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग एक्स को और वाई को 1 1 रखोगे, तो ये तो f2 बन जाएगा और यहाँ पर f1 प्लस f1 आ जाएगा, क्योंकि आपने x और y को 1 1 रखा है। और इसकी वैल्यू 7 और 7 होने की वजह से अगले पार्ट का आंसर 14 आ जाएगा। अब आपको f3 की ज़रूरत पड़ेगी, f3 की ज़रूरत पड़ेगी तो आप x को 2 y को 1 रख लोगे, x को 2 y को 1 रखोगे तो इधर f3 बन जाएगा, इधर f2 प्लस f1 बन जाएगा। दोनों की वैल्यू आपको पता है, f2 तो अभी निकाला था 14 और ये कितना है 7, तो 21। जैसे ही आप ये प्रोसेस करते जाओगे ना आपको AP मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, AP, ठीक है ना। और AP में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, f1 से लेकर fn, उनका सम निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 So ट्वाइस how did you ऑफ, get n by 2? So is it सॉरी, the formula for? So how did you get n into n plus 1 by 2? So is it the formula for all the real numbers? हैव यू Sorry. स्टडीड सीक्वेंस एंड सीरीज इन क्लास 11th? Yes, sir. डू यू रिमेंबर सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यूब? So no, sir. why are you not revising those topics? I taught you this sigma notation and properties, and that this was the whole article was there. So many questions we solved at that time. So obviously this is formula. Go back and whenever you get free from the class, open that chapter, sequence and series. Okay. There you will find sigma notation and properties. You will see these results. Just go through them once. Okay. Yes, sir. See, timely revision is important. 12th is going on fine, but right now you are free all the day. After attending the class, what you have to do? So you can plan a revision plan for yourself. Like if you think that some chapter is totally out of touch, okay, for example sequence series, quadratic, take out some time and just go through the chapter, try to solve some questions so that those things are in your mind. Okay,
Otherwise it will become very difficult. See, Yes. yeah, so that is what I'm saying, that if I go for second method, this is AP, right? The formula for sum of AP, that is what we have to use. Formula is n by 2 2a plus n minus 1 into d. First term is 7, common difference is 7, number of terms are n. Sum of AP, n by 2 is 14 plus 7n minus 7. This is n by 2, 7n plus 7. And then you take 7 common, and it will be this. So you can see that you have got the same answer, right? But obviously working is more, right, in the second method, because if you are not able to identify the function directly, you will have to find 3-4 values, and on the basis of your knowledge that you have gathered till now, you will see that it is AP. Sometimes it may be GP, that you will have to see how to add. Okay, that is your problem. I have taught you all the methods. Okay, so this is how we use it. If someone was confused that how I will be using this result or where to use, then this is one way. Okay, now wait, let me give you another question. Just wait. ऐसा करो उसमें, चलो मैं लिख के देता हूँ आपको. वेट, if x y belongs to R and f of x plus y is equal to fx into fy, and f1 is 2, then find sigma f x x1 to 10. इस क्वेश्चन को करो सब लोग. Sir, the screen is frozen. Sorry, screen is frozen. The screen is frozen. These days this network issues. Is it visible now? No, sir. So Guru, dictate the question. Wait a minute, without screen it is not possible. No, try to reconnect. Wait.
Nigel, can you see the screen? Yes. All right, try this question, everyone. अभी कोई आंसर आया? हमारे पास है ना फंक्शन, वहाँ से निकालो ना, इसको भी करने के दो बन के। इतना जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है ना यहाँ से यहाँ तक, उसके अकॉर्डिंग अगर ढूंढोगे तो मिल जाएगा ना पीछे ये। विच वन? थर्ड वन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स एफ वाई कितना होता है? ए टू द पावर के एक्स, ए टू द पावर के एक्स, एफ एक्स इक्वल्स ए टू द पावर के एक्स। अब इसमें f1 2 गिवन है, और अगर यहाँ से f1 निकालेंगे तो f1 आएगा a टू द पावर k। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों से क्या मतलब निकल के आया? इन दोनों से मतलब निकल के आया कि a की पावर k की वैल्यू 2। अब ये जो फंक्शन है देयरफॉर f(x) जो कि a की पावर kx है, इसको आप एक्सपोनेंट से ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे a टू द पावर m टू द पावर n इज़ a टू द पावर m इंटू n, और इसकी वैल्यू 2 आ गई है, तो क्या बन जाएगा ये? 2 टू द पावर x। देखो फंक्शन आ गया, फंक्शन आते ही सवाल हो जाएगा। कैसे? एफ एक्स एक्स 1 to 10, तो यहाँ पर आप इसको कितना रख दोगे? एफ एक्स जो निकाला है उसको रख दोगे 2 to the power x, एंड व्हेन यू विल एक्सपेंड दिस यू विल गेट अ जीपी। ये देखो जीपी याद है, जीपी का सम बन गया ये। सो व्हाट विल बी द आंसर? ए इंटू आर, कॉमन रेशियो कितना है? 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर, 2 into 2 to the power 10 minus 1, you can leave it here.
ठीक है ऐसे कर सकते हैं ना। वंस अगेन ये तो वो है कि अगर फंक्शन याद रह जाए, आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रह जाए तो आप कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मान लीजिए आपको याद नहीं रहा तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि आपको निकालना क्या है। तो आपको जो निकालना है उसके लिए आप इसको एक्सपेंड करोगे तो F1 F2 F3 से लेकर F10 ये बन जाएगा। इसमें F1 जो है वो वैल्यू आपको दे रखी है 2, लेकिन पिछले क्वेश्चन की तरह बाकी वैल्यूज़ आपको निकालनी पड़ेंगी और वो उसी रिलेशन से आएंगी। तो एक बात बताओ कि तुम्हारे को ये जो फंक्शन दे रखा है इससे F2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, कौन बताएगा? हाउ यू कैन फाइंड F2 फ्रॉम हियर? Yes, anyone? How you will find value of F2 from here? Nigel, can you tell? So put y as 1. Y at 1. What about x? 1. करेक्ट, दोनों को 1 रख दो। जब दोनों को 1 रख दोगे तो इधर हो जाएगा F2, इधर बन जाएगा F1 इंटू F1, और इन दोनों की वैल्यू हमको पता है F1 ही तो बन गया। ये कितना आ गया आंसर? 2 स्क्वायर। वही बनने लग जाएंगे टर्म, देखो यहाँ पर ही देख रहे हो, यही बनने लग जाएंगे 2 स्क्वायर। अब अगर तुम्हें F3 चाहिए, F3 के लिए इसी में 2 और 1 रख दो। 2 और 1 रख दोगे तो लेफ्ट साइड में F3 बन जाएगा, ये F2 इंटू F1 बन जाएगा। F2 की वैल्यू अभी निकाल ली 2 स्क्वायर, F1 कितना है 2, 2 क्यूब। आया समझ में? फिर तो पैटर्न ही देख रहा है। पैटर्न क्या देख रहा है? पहला नंबर 2 है, दूसरा 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, फिर 2 की बार 4 आएगा, मतलब ये तो वही हो गया। ये देखो सेम आ गई स्टेप, सीधे आंसर लिखो यहाँ से। ठीक है, तो ये फ़ायदा है। बाकी वैल्यू पुटिंग करने वाला तो है ही है, पर स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, वो भी एक काम की चीज़ है। अब देखो इसमें लास्ट में जो लास्ट वाला पॉइंट है वो और बता देता हूँ। इसमें तो इतना ही है, बाकी क्वेश्चन करना। DPP जो है ऑलरेडी अपलोड हो गई होगी, वो DPP कर लेना, कल डिस्कस होगी। देखिए ये अगर कोई f(x) क्या है, सबसे पहले पॉलिनोमियल, ये अलग है, इन 4 से इंक्लूडेड नहीं है, सेपरेट है। अगर f(x) कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल आप जानते हैं क्या होता है, और वो इस तरह के रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, इस तरह के रिलेशन को, तो उसका रूट ये होता है जो लिख रहा है आपके सामने। किस तरह के रिलेशन को? f(x) इंटू f(1/x) इज इक्वल टू f(x) प्लस f(1/x)। अगर ऐसा होगा तो उसका रूट होता है 1 ± x टू द पावर है। मतलब आपको डायरेक्टली ये रिज़ल्ट यूज़ करना होता है, और किसी को अगर चेक करना है ये कैसे, तो उसमें पुट करके देख लेना, LHS और RHS सेम आएंगी, ये मतलब होता है इसका। तो इस पर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस कॉन्सेप्ट पे? एक तो डायरेक्ट, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक तो डायरेक्ट होगा। पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो। इफ f(x) is a polynomial such that f(x) इंटू f(1/x), बिल्कुल ऐसे सेम इन्फॉर्मेशन आती है तो इजीली समझ में आ जाता है सवाल। such that this and f2 is, और f3 ले लेते हैं, एक मिनट, f3 is 10 मान लो, then find value of f5। जैसे ये क्वेश्चन है ना, अब इसमें उस चक्कर में मत पड़ना कि x को मैं 1 और 2 और ये सब रख रख के देखता रहूँगा कि क्या बनेगा, नहीं। इसके लिए तो रिज़ल्ट याद रखो तो बेहतर है। आप सीधे लिखेंगे
दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल्स 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन। ये जो पूरा सेंटेंस है पहले वाला, पूरा सेंटेंस जो पहले वाला, ये इसी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया जाता है कि आप सीधे लिख पाएँ कि पॉलिनोमियल और इस फंक्शन को सेटिस्फाई करता है तो ये होगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इसमें हम x को 3 डाल देंगे। x को 3 क्यों डाल देंगे? क्योंकि उसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, f3 की 2 वैल्यू आ रही हैं। आप याद करिए, एक x के लिए 2 y नहीं हो सकते, वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, तो फिर इसमें से एक रिजेक्ट होगा। और f3 की वैल्यू 10 दे रखी है, तो देखें कैसे रिजेक्ट होगा। एक तो आप सॉल्व करोगे इसको, और एक आप सॉल्व करोगे इसको, प्लस और माइनस। तो यहाँ से जो है प्लस वाले से आपका n का आंसर आ जाएगा 2, और जो दूसरा वाला है वो हो जाएगा इनवैलिड। इनवैलिड क्यों हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल कैन नॉट बी नेगेटिव, आर ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए ये हो गया रिजेक्ट। यहाँ से आपको दो बातें पता चल गई। दो बातें क्या पता चल गई? कि कौन सा वाला रिजेक्ट हो रहा है, माइनस वाला रिजेक्ट हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, कौन सा वाला साइन रिजेक्ट हो रहा है, माइनस वाला, ठीक है। और दूसरी बात, प्लस वाला बच रहा है और उससे n की वैल्यू भी आ रही है, देयरफॉर एफ एक्स आ गया आपके पास। एफ एक्स जो आ गया वो आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो f3 की वैल्यू दे रखी थी उससे तो माइनस वाला रिजेक्ट हुआ साइन, और दूसरी बात जो प्लस वाला है उससे वैल्यू n की 2 आ गई। ये दोनों आप यहाँ पर रख के देखो, माइनस का रिजेक्ट करो, n की वैल्यू रखो, फंक्शन आ जाता है। फंक्शन आ गया तो सवाल हो जाता है ख़त्म। क्यों? बिकॉज आपको चाहिए f5। अब तो कुछ भी निकाल सकते हैं। 26। तो ये तो पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन है कि दो वर्ड्स आप याद रखोगे, एक तो पॉलिनोमियल और दूसरा ये इस तरह का, ये इधर का मल्टीप्लिकेशन और उधर प्लस, मतलब ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उधर इन दोनों का प्लस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला है। उसके बाद जो एक इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी ना, वो इसमें से एक तो साइन डिसाइड करवाएगी कि प्लस आएगा या माइनस, और दूसरी बात n की वैल्यू भी पता करवाएगी। उससे आपके पास फाइनल फंक्शन आ जाएगा और फिर आप उससे कुछ भी रिलेटेड निकाल सकते हो। ये मतलब होता है क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको करिए आप लोग सभी। ये क्वेश्चन करिए, और ये बात ज़रूर सोचिएगा कि ये क्वेश्चन इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। अभी जो मैंने एक सवाल करवाया ना पॉलिनोमियल वाला, उसी से रिलेटेड है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। आर दे रखा है, एक्स दे रखा है, r-0।
देखिए भाई कैसे होगा, सुनिए इसको। मैंने बोला ना जी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल, जैसे एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है और वो रिलेशन लाना था। इसमें सबसे पहले आप ना वाई को 1/x रखेंगे। जब आप y को 1/x रखेंगे तो जी एक्स हो जाएगा, ये जी 1/x हो जाएगा, ये जी एक्स हो जाएगा, ये जी 1/x हो जाएगा। नेक्स्ट वाला ना 1 हो जाएगा, जी 1 देख लो आप, क्योंकि जब आप y को 1/x रखोगे तो 1/x इंटू एक्स। ठीक है, अब आपको कुछ पहचान में आ रहा होगा वो जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड बताया था मैंने, लेकिन प्रॉब्लम है ये लास्ट के 2 टर्म्स की, जी 1 - 2 की। अच्छा, जी 1 की वैल्यू ही नहीं दे रखी है, बस ये बोल रखा है इट इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो उससे क्या करूँ, नॉट इक्वल टू 1 नहीं है क्या, वो चाहिए। तो इसके लिए वापस इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, x और y दोनों को 1 1 रखना पड़ेगा। जब आप x और y दोनों को 1 1 रखेंगे तो इट विल बी g1 इंटू जी1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि g1 की वैल्यू निकाली जा सके। आप देख लीजिए खुद भी, आप सोचिए, ऐसा नहीं है कि यहीं देखते रहें, x और y की जगह 1 1 रखते हैं तो ये बन जाएगा। ये क्या बना, ये बन गया g1 इंटू जी1, मतलब उसी का स्क्वायर, ये 3 ऑफ g1 - 2। ये तो क्वाड्रेटिक टाइप की बात बन गई। देखो जैसे क्वाड्रेटिक में वैल्यूज़ नहीं निकालते थे वैसे, मतलब ये कुछ इस तरह की बात है। जैसे कोई बोले कि a² - 3a + 2 को सॉल्व कर दो, तो a की वैल्यू 2 और 1 आ जाती है ना, ऐसे। तो इसका मतलब g1 की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 2 और 1। क्वाड्रेटिक हो गई g1 में, जैसे a में क्वाड्रेटिक सॉल्व किया यहाँ पे। इसमें से ये रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि गिवन है कि g1 की वैल्यू 1 नहीं है। आई बस समझ में। इससे अब सवाल कैसे हुआ, अब सवाल बिल्कुल पिछला जैसा क्वेश्चन हो गया। क्यों, क्योंकि जो g1 की वैल्यू 2 है ना, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा, तो फिर क्या बन जाएगा, जी एक्स इंटू जी 1/x इज इक्वल टू जी एक्स प्लस जी 1/x प्लस 2 - 2। ये देखो कैंसिल हो गया। और अब ये सवाल हो गया बिल्कुल सेम। बाय, बिकॉज जी एक्स एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। करेक्ट। नाउ दिस इज सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। इसका मतलब तो एक बात हुई कि जी एक्स इन दोनों में से कोई एक होगा, 1 ± x⁴n में से कोई एक होगा। करेक्ट। और उसे निकालने के लिए आपको g2 की वैल्यू दे रखी है, तो g2 यानी 1 ± 2n जो कि 5 हो गया, है ना। x की जगह 2 रखा और वैल्यू 5 यहाँ देखो ये दे रखी है। फिर वही पिछली बार की तरह इस बार भी माइनस वाला ही रिजेक्ट होगा और वो रीज़न सेम रहेगा। यहाँ से 2n आ जाएगा 4, n आ जाएगा 2, और यहाँ से 2n इज़ -4, रिजेक्ट, बिकॉज एक्सपोनेंशियल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो प्लस वाले से आंसर आ रहा है, n की वैल्यू 2 आ रही है। वंस अगेन जी एक्स अपने पास कितना आ गया, प्लस साइन बच रहा है और n की वैल्यू 2 आ रही है। और एक बार अगर ये आ गया तो फिर g3 निकालना कौन सी बड़ी बात है, g3 विल बी 10। ये इसका दूसरा सवाल, देख लो अच्छे से, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, एनी डाउट। अब इसमें जो पहली वाली बात है ना, y को 1/x रखना, इसका हिंट थोड़ा सा तो मिल ही जाता है, क्योंकि जी एक्स पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल से रिलेटेड फंक्शनल इक्वेशन में एक ही रिजल्ट है जहाँ पे 1/x आता है, तो वो y की जगह रखना, ये बात समझ में आ ही जाती है, इतना कोई डिफ़िकल्ट तो है नहीं। इस सॉल्यूशन को देख लो, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट इन दिस? Davis, do you have any doubt in this question? No, sir. Anyone else having any doubt in this question? तो भाई ये फंक्शनल इक्वेशन फिर होता है ख़त्म। फंक्शनल इक्वेशन में दोनों तरह के सवाल करवा दिए। एक तो जो जनरल क्वेश्चन होते हैं इसमें वैल्यू पुट की जाती हैं, और वैल्यू पुट करने के बेसिस पे हम फंक्शन निकालते हैं, या उनमें कोई वैल्यू निकालते हैं, जैसे f(4), f(-3), इस तरह से।
ठीक है, रिप्लेस कर करके, या फिर स्टैंडर्ड फंक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे, वो सेकंड टाइप होती है। मैंने एक डीपीपी आपसे शेयर की है, उसमें करीब 12-14 क्वेश्चंस हैं, उस सारा फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड है, उसको कर लेना, डिस्कस कर लेंगे कल। और कल हम इसका लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कॉम्पोजिट फंक्शन। इट इज़ अ बिग टॉपिक, पूरा 1 घंटे 20 मिनट 30 मिनट का ही है वो टॉपिक, उससे पहले ख़त्म नहीं होगा। ओके, फ्राइडे विल बी हॉलीडे बिकॉज ऑफ ईद, so we have tomorrow's class. Tomorrow we'll be completing the topic, and on Saturday जो कल की डीपीपी होगी वो डिस्कस करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, बिकॉज संडे को आपका टेस्ट होगा, राइट, एंड कंप्लीट फंक्शन विल बी कमिंग। इसलिए डीपीपी करते रहना और कॉपी पढ़ते रहना, नोट्स पढ़ते रहना ज़रूरी है, ठीक है। देन फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। ओके, फॉर टुडे दिस मच इज सफिशिएंट, दिस इज़ फाइन। विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ टुमारो। बाय एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.